ایک مہینے میں 10 کلو وزن آسانی سے کم کر سکتے ہیں۔ ام الامراض ہے یہ، پیٹ کی چربی ام الامراض ہے۔ اگر اس سے بچنا ہے، اگر آپ ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ اور سینہ برابر تھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں خالد محمود شہزاد۔ ناظرین، اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک تو پیٹ کی چربی جلدی کم کیوں نہیں ہوتی، اور دوسرا اب اس ویسٹ کو کم کیسے کرنا ہے۔ یقین کریں کوئی مشکل کام نہیں ہے، دنیا کا کوئی کام مشکل نہیں ہوتا، صرف بندہ نیت کر لے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، ٹھان لے، سب کام آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی ایک مہینے میں 10 کلو وزن آسانی سے کم کر سکتے ہیں۔ 2 ماہ میں 20 کلو، 3 ماہ میں 30 کلو۔ جب میں نے شروع کیا تھا نا تو مجھے تو زندگی میں کوئی ایسا بندہ نہیں ملا، دیر واز نو اینی رول ماڈل کہ جس کو میں دیکھ کر وزن کم کرتا، کیونکہ جن کو میں نے موٹا دیکھا ہے وہ موٹے ہی دنیا سے چلے گئے، جن کو پتلا دیکھا ہے وہ پتلا ہی رہے۔ لیکن الحمدللہ جب میں نے بیماریوں کا سامنا کیا اور مجھے اور کوئی بچاؤ کی صورت نظر نہیں آئی تو میں نے پھر اللہ سے دعا کر کے پھر میں نے اپنی ویسٹ اور ویٹ کو جب کم کیا تو اس کے بعد آئی موٹیویٹڈ مینی پرسنس، اور میری زندگی میں ایسے کئی لوگ ہیں، یعنی ہمارے فیملی کی بچیاں ہیں جس میں ایک بچی نے 78 سے 55 کلو پہ آئی ہے، ایک بچی 75 کلو سے غالباً وہ 50 کلو پہ آئی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے عارف والا سے لاہور آئے، ان کا ویٹ تھا تقریباً 90 کلو۔ جب میں نے ان کو دیکھا میں نے کہا شبان صاحب یہ پیٹ یہ تو نقصان دہ چیز ہے، کہنے لگے انشاءاللہ آپ بتائیں اسے کیا کرنا ہے۔ بس پھر انہوں نے وہ لگ گئے اور 30 کلو وزن انہوں نے کم کیا۔ تو ناظرین، پیٹ کی چربی کو کم کرنا ہماری بقا کے لیے، ہماری صحت کے لیے ضروری ہے۔ ہم جو بھی کھاتے ہیں نا گلوکوز میں کنورٹ ہو کر بلڈ میں آتا ہے، اور پھر لبلوا جو پنکریاز ہے وہ انسولین جو ہارمون ہے وہ ریلیز کرتا ہے۔ یہ انسولین اس کو لے کر باڈی سیل تک پہنچاتی ہے اور وہ آگے اس کو یعنی یوٹیلائز کرتے ہیں، ان کو توانائی چاہیے ہوتی ہے اور باقی جو بھی کام کرنے ہوتے ہیں وہ باڈی سیلز کرتے ہیں۔ جب ہم کھاتے رہتے ہیں گلوکوز بڑھتا رہتا ہے، شوگر بڑھتی رہتی ہے، اور ادھر لبلبا جو ہے وہ انسولین بناتا رہتا ہے۔ اب خون میں جب یہ انسولین پھر لے کر جاتی ہے وہ شوگر کو، اس گلوکوز کو سیلز کے پاس، تو وہ آگے سے یعنی نو رسپانس، وہ دروازہ نہیں کھولتے، یہ کہتی کہ یہ آ گئی ہے شوگر گلوکوز، وہ دروازہ نہیں کھولتے کہ ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ ہے انسولین ریزسٹنس کو کہتے ہیں، اور یہ نقصان دہ ہے۔ پھر وہ بلڈ میں شوگر پھر رہی ہے، انسولین بڑھ رہی ہے، اور پھر یہی جو جا کے پیٹ پر اور جگر پر جا کے انہوں نے جو فیٹی لیور کر دیتے ہیں اور پیٹ کی چربی بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین، ہمارے لیے رول ماڈل از آور ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم۔ آپ ان کی زندگی دیکھیں، یقین جانیں کوئی کام مشکل نظر نہیں آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ اور سینہ برابر تھا اور کھانا ایک وقت، دوسرا وقت نہیں بھی ملا روزہ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ چند نوالے ہی کافی ہیں کمر سیدھی کرنے کے لیے، تو میرے اور آپ کے لیے جو ہے نا یہ مشقت کرنا خالی پیٹ رہنے کی اور وزن کم کرنے کی، ویسٹ کم کرنے کے لیے پھر مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ہم طریقہ زندگی دیکھتے ہیں تو پھر ہم بھی اس کو فالو کر کے جیسے وہ روزے رکھتے تھے اور عبادت کرتے تھے، تو ہمارے لیے بھی یہ تو یا تو ہم وہی کام کریں، نہیں تو پھر کم از کم ہم اپنی ڈائٹنگ تو کر کے ہم اپنا ویٹ کم کر سکتے ہیں، اپنی ویسٹ کم کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو ہے نا 2-3 پیٹرن ہیں، یعنی جیسے ایک بندہ روٹی نہیں چھوڑ سکتا جیسے میں ہوں، تو اس کے لیے 1/3 کر لیں جتنا آپ کھاتے ہیں۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا تھا کہ اگر آپ نے کھانا ہی ہے تو جتنی آپ کی بھوک ہے اس کا 1/3 آپ روٹی کھائیں، اور 1/3 پانی، اور 1/3 جو ہے وہ ہوا کے لیے۔ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے محمود، ابھی پچھلے دنوں 1.5 ماہ پہلے پیٹ بڑا ہوا اور برے حال، چھوٹی سی عمر، 30 برس کی عمر۔ میں نے کہا محمود یہ کیا؟ کہنے لگا جی بس سارا دن بیٹھنے کا کام ہے، پڑھاتا ہوں بچوں کو، اور میں نے کھانے کی روٹین
रोटियां उसकी 10-12। मैंने कहा यार और नहीं कर सकते, वो कुछ वाक तो करो। कहने लगे जी वाक तो मेरे पास टाइम नहीं है। मैं कहा फिर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक 1/3 कर दो। कहने लगा ठीक है। अभी परसों रात 10:15 पर मैंने उसको फोन किया, महमूद बड़ा खुश, कहता जी मैं तो बड़ा लाइट हो गया हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहता जी 1.5 माह में 8-9 किलो वजन कम हो गया। मैंने कहा तुमने क्या किया? कहने लगा जी आपके कहने के मुताबिक मैंने जो 10-12 रोटियां खाता था ना, मैंने सिर्फ 2-2.5 रोटियों पे ले आया हूँ और मेरा 90 से अबव था, अब 81 हो गया है। बहुत खुश था। तो एक तो ये है कि आप जितनी आप रोटी खाते हैं उसका 1/3 कर दें। और वेट कम करने के लिए 2 काम करने होते हैं। एक तो इनटेक जो है वो कम करना है, घटाना है, और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी है। ये 2 रूल याद रखें। और दूसरा, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपने बाजार की चीजें छोड़ दें। बाजार की चीजें नहीं, यानी जिसमें बेकरी प्रोडक्ट्स, मिठाइयां मैंने बताई थी, फास्ट फूड कंप्लीट बैन, तली हुई चीजें छोड़ दें, चीनी छोड़ दें, नमक कम कर दें। नमक वाटर रिटेंशन करता है, ये भी वेट रिडक्शन में ना रुकावट बन जाता है। और ये जो शादियों पे जाकर हम सुबह भी खाली पेट रहते हैं कि यार शादी पे खाना है, वो जो प्लेट भर के और फिर ऊपर लेग 2-3 डाल के और फिर उसके बाद स्वीट और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स, ये एक आप समझ लें बारूद पेट में भरते हैं। माहिरीन बताते हैं कि एक बर्गर को हजम करने के लिए 2 घंटे की वॉक चाहिए। 2 घंटे की वॉक सिर्फ एक बर्गर को हजम करने के लिए। और जो कोल्ड ड्रिंक हम पीते हैं, एक बोतल जो रेगुलर बोतल है उसमें 16 से 20 चम्मच चीनी होती है। और अंदाज़ा लगा लें फिर ये खा के और फिर सारे बॉडी ऑर्गन्स को हम तंग करते हैं और फिर बीमारियां और ये सारा कुछ होता है। और यही फैटी है जिससे तरह तरह की बीमारी लग, उम्मुल इमराज है, ये पेट की चर्बी उम्मुल इमराज है। तो अगर इससे बचना है, अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो ये खाना कम करें जो जैसे मैंने आपको पहले बताया। यानी एक तो मॉडल मैंने आपको बताया, रोटी अगर आप 6-7 खाते हैं, आप दिन में 1-2 रोटियां कर लें। बहुत भूख लगती है, यानी आपने एक तो कम करना है कार्बोहाइड्रेट्स, यानी चीनी कम करनी है, और दूसरा फैट्स यानी चिकनाई कम करनी है। और जो बढ़ानी है चीजें, वो चीजें खानी है जिससे एनर्जी आए लेकिन जो है ना फैट ना बने, वो चीजें हमने खानी है। यानी इन 2 चीजों, ये कौन कौन सी हैं आप नेट पर सर्च करके आप कर सकते हैं। आपने पेट ही भरना है ना, फल खाएं, आप सब्जियां खाएं, कच्ची सब्जियां खाएं, इससे आप खीरे खाएं। और फल में यानी ये ज्यादा मिकदार में आम, अंगूर, केला, ये ज्यादा मिकदार में नहीं लेना। बाकी आप सेब खाएं, अमरूद खाएं, दीगर फल आप खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं। यानी एक मॉडल रोटी कम कर लें, इतने में ही आपका वेट आपको पता चल जाएगा कि कितना है। एक और शख्स को मैं जानता हूं, सुबह व्हाइट एग्स लेता था और उसके बाद उसने ग्रीन टी उसमें लेमन डाल के, दोपहर को उसने सैलड खाना, थोड़ा सा साथ वो गोश्त लेता था चिकन का, वो जो रेड मीट है ना, ये आपको यूरिक एसिड भी कर सकता है, वो भी थोड़ी मिकदार में है। और शाम को भी उसने या तो चिकन लेता था, वो ग्रिल किया हुआ यानी चिकनाई से बचा हुआ, या बॉइल्ड, या वो स्टीम रोस्ट। उसने चीनी छोड़ दी, उसने रोटी चावल बिल्कुल छोड़ दिए। 3 माह में उसने 35 किलो वजन कम किया है। और मैं आपको कोई किताबी बातें नहीं बता रहा हूं, मैंने जो ऑब्जर्व किया है मैंने आपको वो बातें बता रहा हूं। देखें मुश्किल लगता है, लेकिन आप ये तो देखें कि जब पेट पे चर्बी आती है और फिर इसके बाद जो दिल के अमराज होते हैं, और फिर जब सर्जरियां करानी पड़ती हैं, जब बाईपास करवाना पड़ता है, जब शुगर होती है, और फिर जो दिन में 2-2 मरतबा इंसुलिन लगानी पड़ती है। मेरी मिसेज है, मुझे पता है, वो सुबह भी इंसुलिन लगाती है, शाम को भी इंसुलिन, उसकी टांगें भी छलनी है, उसका पेट भी छलनी है, कभी टांगों पर कभी पेट पर। जब दवाइयों पे इतना खर्चा करना है तो अब पहले ही अपनी सेहत पे, जब डॉक्टरों को देना है, लैब में खर्च करना है, अपनी सेहत पे खर्च करें। उसके लिए क्या है, आप जैतून का तेल अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा अंडों में भी यानी थोड़ा सा जैतून का तेल इस्तेमाल कर लें, आप नट्स इस्तेमाल करें, आप बादाम खाएं, आप अखरोट खाएं, आपको इससे अनसैचुरेटेड फैट्स मिलेंगे, आपको मिनरल्स मिलेंगे। आप सुबह उठकर चिया सीड्स है 1 चम्मच पानी में भिगो दें, खाली पेट आधा घंटा उसको भिगोए रखें, उसके बाद उसमें लेमन निचोड़ कर पिएं। उसके बाद आप अंडे की सफ़ेदी लें, यानी वो प्रोटीन है, अंडे की सफ़ेदी खाएं। उसके साथ आप ग्रीन टी ले सकते हैं। फिर दोपहर को आप सैलड खाएं, शाम को भी आप कुछ चिकन वगैरह खा लें, कुछ सैलड ही खा लें। आप 2-3 महीने करें, आप कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना। और
आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसका मुझे कितना फायदा हुआ है। यकीनन ये एक मुश्किल काम है, मैंने खुद किया है, मैं आपको किसी और की नहीं बता रहा, मैंने खुद किया है। और मैंने 20 लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह, जिनकी शक्ल इस वक्त भी मेरे सामने है, जिन्होंने अपना वेट रिड्यूस किया, अपनी वेस्ट जो है वो कम की। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि अपनी वेस्ट को देखना है, इसका ऑडिट करते रहना है। जितना आपका कद है, आपकी वेस्ट उस कद के आधे से कम होनी चाहिए। इसलिए नाज़रीन, ये चीजें आप इनको फोकस करना है। आप ग्रीन टी दिन में 2 मरतबा से ज्यादा नहीं पीनी। इस तरह अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ब्लैक कॉफी, दैट इज द बेस्ट थिंग वेट रिड्यूस के लिए, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिन चीजों से बचना है उन चीजों से बचें, और जिन चीजों से जो आप खा सकते हैं वो चीजें खाएं। और आपको 2-3 महीने ये करें, फिर इसके बाद आप वॉक करें। वॉक यानी सुबह सुबह वॉक करें, आधे घंटे से शुरू करें कम से कम, और फिर बढ़ाते जाएं घंटा। और यानी ये फैट कैसे रिड्यूस होगी? जब आपको भूख सताती है ना, और वो चाहती है कि मुझे कुछ दें, मुझे एनर्जी चाहिए, जब आप उसको खाने का कुछ नहीं देते, फिर आपकी वो फैट बर्न होगी जो जिस्म पे चढ़ी हुई है। इसी तरह वॉक भी, यानी आप इतने लेवल तक वॉक ले जाएं कि जब आप थक जाएं कि आप बस, तो समझ लें अब आपको है इसका फायदा होगा। तो नाज़रीन, इन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, आप एक्टिव रहेंगे, आप फिट रहेंगे, आप यानी एक नई ज़िंदगी आपको महसूस होगी कि वाकई यानी वॉक से या डाइट से यानी मेरी ज़िंदगी में इनकलाब आ गए। आप इबादत बेहतर कर सकते हो, आप जो भी काम करते हो वो यानी आप में इसको बहुत फ़ायदा होगा। तो नाज़रीन, ये चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था